स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಾದ ಆಫ್ತಾಬ್ ಖಾದ್ರಿ ನಾಮದಾರ್, ಜಮೀರ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರೇ, ಜಮೀರ್ ಬಾಂಗಿ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಲ್ ಸರ್, ಇದ್ರೂಸ್ ಬಕ್ಷಿ ಅವರು ಈ 35 ಜಮಾತದ ಏನು ಒಕ್ಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ನೈಜವಾದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜ, ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು OBC ಜನಾಂಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಏರಿಯಾ ಇದು JM ರೋಡ್. ಇದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಒಕ್ಕೂಟನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇವತ್ತು ತಾವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ದು 35 ಜಮಾತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ 35 ಜಮಾತದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಾಜರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹೋರಾಟ ಜಾತ್ಯತೀತ, ಧರ್ಮಾತೀತ, ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಹೋರಾಟ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದೀವಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೂ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವ ಕೆಲಸ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ನಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿನಂತಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ರಾಜಕೀಯ ಆಗಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಗಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ, ಅದು ದಾನಮ್ಮದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಷರತವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಂದು ಕಳ್ಕಳಿ ವಿನಂತಿ 35 ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ದಲಿತ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಶೋಷಣೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗ ನಮಗ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ನಾನೇ ಶಾಲಿ ಕಲ್ತಿರುವ 1 ನಂಬರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಿತಿಯವರು ನಿರಂತರ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಬರೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುದು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇನೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು 1 ನಂಬರ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸದೃಢ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಜೆಂಡಾ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪೆನ್ನಿನಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪೆನ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ವಿದ್ಯಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಖಡ್ಗ ತೋರಿಸಿ ಈ ಅನ್ಯ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ನಾವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು, ನಾವು ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಈ ಹೋರಾಟದ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್। पूरे सिटी के जिम्मेदार लोग जो समाज कार्यकर्ता हैं, जो लोगों की अच्छाई चाहते हैं, वो लोग हमारे झंडा कट एरिया में आए हैं। एक झंडा कट ऐसा एरिया है कि जहाँ से रेवोल्यूशन शुरू होती है, तुमको मालूम है ऑलरेडी। पहले शुरू में ठंड रहते हैं लोग, बाद में आहिस्ता आहिस्ता मालूम करने के बाद जो नहीं एक रेवोल्यूशन लाते हैं। तो मेन मकसद यहाँ जमा होने का क्या है बोले तो, जैसा तुम जानती हैं बहुत से 2-250 प्राइवेट दवाखाने हमारे पास चल रही, कोई तुम रिस्ट्रिक्शन नहीं करे। और 2 मेडिकल कॉलेज यहाँ ऑलरेडी हैं, 2 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, यूनानी कॉलेज भी है, सभी है। लेकिन आज तुम्हारा जो एक हक छीना जा रहा है। क्या है भाई हक बोले तो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमारे पास आना था। ऑलरेडी हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भी, वो 150 एकड़ जमीन है वहां पर, 30 से 40 एकड़ है तो एक मेडिकल कॉलेज खोल सकती है गवर्नमेंट। तो उसके बावजूद भी जो CT स्कैन है वहां पर, MRI है, और जो एक नंबर 1 गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोल के प्राइज मिले हमारे बीजापुर को। आप देखते हैं कि गुलबर्गा में जाकर देखो तुमने, खरगे साहब जो 2000 करोड़ का हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करे। आज हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑलरेडी रेडी है, अपना पूरा रेडीमेड फूड क्या कर रही नो बांट दे रही। किसे बांट दे रही? जिसका पेट भर रहा नहीं आज
2-3 लोगों का पेट नहीं भर रहा, इसलिए उन्होंने बाट खाना चाहती है। मैं तुम्हारे समझ में आने को बोल रहे हैं बात, ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि गरीब से गरीब लोग बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। मैं एग्जाम्पल बता दूं तुम्हारा कि एक परसों सांप लड़ पेशेंट आया, निडगुनी से पेशेंट आया, मेरे पास प्राइवेट में आया, तो उसको इंजेक्शन देने के वास्ते कितना खर्चा आया मुझे, 20,000 रुपये देना पड़ा। तो एक गरीब इंसान 20,000 कहां से लाता बोलो तुमने? तो ये पॉसिबल नहीं है। हर पेशेंट को मालूम, देखो एक 10% लोग तुम्हें दे सकती पैसा, तो 90% लोग गरीब आए हमारे। तो ये गरीब लोगों का सर हॉस्पिटल जो नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल है हमारा, तो वहां जाने के बाद वहां पर फ्री है, उसका स्तर, उसका हक है वो। देखो गवर्नमेंट का काम क्या है बोलो, खाना देना, पानी देना, उनका जो नहीं हेल्थ के बारे में देना है। ये हमारा संविधान देश है ना, तो ये चीजों को जो नहीं हमारा जो नहीं छीन ले रही। तो मैं आज जो नहीं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पूरे लोगों को कि ये चीजों से आप जो नहीं आगाज आ जाओ, मालूमात कर लो चीज क्या चीज देखने का। तो पूरे जो जितने भी लोग हमारे एरिया में हैं, मैं क्या तुम्हारा मिसगाइड नहीं कर रहा ये बात को, तो सही सही बता रहा हूँ कि हमारा सिविल हॉस्पिटल को उन्हें छीने जा रहे हैं। जहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने वाले थे, हर जगह मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, क्यों नहीं भाई? गुलबर्गा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बागलकोट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बल्लारी में मेडिकल कॉलेज, सब जगह है। सिर्फ बीजापुर के क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम लोग जो नहीं जागृत नहीं कर ले रहे, हमारा जो हक छीना है वो मान पड़ा नहीं तुमना। तो मैं जो नहीं, मैं एक आपका जो भाई होने के नाते मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे लोग जमात ले जो नहीं इसको साथ दे। हक की बात है, हक की बात के लिए साथ देना पड़ता, झूठ बात के लिए साथ नहीं दो। हक की बात क्या है भाई, गरीब को एक न्याय मिलना है, आपको दवाखाना उनका इलाज का मौका मिलना है उनको। अभी एक्सीडेंट हो जाता भाई, किसके पास पैसे बोलो देंगे? एक अब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते तो क्या होना पड़ता है, आयु सर्ट लेकर जाओ, वो इंजेक्शन लगाओ, एक 10,000 रुपये में हाथ में होना पड़ता तुम्हारा। तो वहां पे जो नहीं हमारा गवर्नमेंट का पूरा सहूलत है, हमारा हक है वो ये हक को छीना जा रहा है। और दूसरी बात जो नहीं, मेडिकल कॉलेज खोलना, मेडिकल कॉलेज क्यों खोलना चाहिए? हमारे गरीब बच्चे वहां पर गवर्नमेंट सीट लेकर पढ़ेंगे तो एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, खिदमतकार बन सकते हैं, वो भी छीना जा रहा। तो इसलिए जो नहीं आप सभी जो लोग हमारे जो सब लोग आए हैं यहाँ पे, उनको साथ देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमना। थैंक यू होनाडा। बीजापुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए गुज़िश्ता करीब 72 दिन से हमारे अनिल वसमनी साहब, भगवान रेड्डी साहब, अकरम माशालकर साहब, सुरेश बीजापुर साहब, भोगेश शोलापुर साहब, हमारे पुजारी वकील साहब और दिगर हजरात जो हमारे भाग्यवड़ी सर और दिगर हजरात जो मौजूद नहीं, उन सब के वो सब लोग मिलके एक इनकलाबी धरनी सत्याग्रह क्या है बीजापुर में गुज़िश्ता 72 दिनों से क्या है लगातार चलाते आ रहे हैं। उनका अपना जाति कोई मकसद नहीं है, उनका अपना जाति कोई क्या है लेन देन नहीं है, सिर्फ दर्द बीजापुर जिले के लोगों के लिए है और वो हक की क्या है आवाज है, वो हक के लिए क्या है अपनी आवाज उठाए हैं। ये बहुत पहले होना था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिस तरह क्या है अभी भगवान रेड्डी साहब ने बताया, बीजापुर में क्या है करीब 150 एकड़ क्या है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्या है जमीन है। इतनी जमीन शायद ही पूरे हिंदुस्तान में क्या है कहीं भी नहीं है। तो हम लोग क्या है बिल्कुल डिजर्विंग है, हम लोग क्या है बिल्कुल हकदार है। और नॉर्थ हम लोग क्या है कल्याण कर्नाटक, ये कित्तूर कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक जो ओल्ड नाम से जाना जाता था उसके हकदार हैं। और ये नंजुंडप्पा वर्दी इसलिए क्या है बनाई गई थी कि जो है नॉर्थ कर्नाटक का जो बॉम्बे कर्नाटक का एरिया है वहाँ हम लोग बहुत पिछड़े हैं बोल के क्या है नंजुंडप्पा क्या है कमीशन बना के एक रिपोर्ट लिया गया था। मैं याद दिलाना जाना चाहता हूँ 2001 में जब मरहूम एमएल उस्ताद साहब मिनिस्टर थे, मैडम नफीस फजल मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे, नफीस फजली ने कहा था कि जो है बीजापुर एक पिछड़ा हुआ जिला है, उस्ताद साहब मैं क्या है मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हूँ, आप क्या है एक प्रपोजल बीजापुर मेडिकल एजुकेशन मेडिकल कॉलेज के लिए क्या है लाओ मैं करके देती हूँ बोल के। तो उस वक्त क्या है हम लोग मैं खुद साथ में था, मैं खुद टाइप करके ले गया था नीचे रेलवे से। उस वक्त क्या है उस्ताद साहब दो क्या है कॉलेजेस डाले थे, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए और एक गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए। हम लोग क्या है वो प्रपोजल लिए, एक डेट फिक्स हुई, वो भी बोले कि जो है कल सुबह में क्या है 6 बजे आप एसएम कृष्णा साहब सीएम के घर में रहो,
मैं खुद भी क्या है वहां पे आती हूँ, कल क्या है हम लोग अप्रूवल लेंगे बोल के, हम लोग उससे पहले क्या है मैं उनको ब्रीफ करके आता हूँ, वो आती हूँ बोल के क्या है एक दिन पहले वो बोले थे। तो दूसरे दिन क्या है सुबह में 6 बजे गए, जाने के बाद में क्या है उनका डिस्कशन शायद हुआ था, तो उस वक्त न जाने क्या हुआ, पता नहीं, मैं खुद भी वहां पे मौजूद था। एस.एम. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ जब लेटर दे, ಸಾರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ನಾನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇದರದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರಿ, बट आई एम हेल्पलेस। नानू ನೀವು ಹೆಂಗೂ ಬಂದಿರಿ, जी परमेश्वर साहब आज भी जिंदा है, मौजूद है, वो भी क्या वहां पे बैठे हुए थे। ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, महिला यूनिवर्सिटी ಅನ್ನೋದು ಬಿಜಾಪುರ್ಗೆ ಏನದ अलॉटमेंट ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ कर बोल को क्या है बोले, वो मेडिकल कॉलेज का प्रस्तावने वहां था। भगवान रेड्डी साहब अभी ये आज भी क्या है वो आरटीआई में रिकॉर्ड्स क्या है निकाले बोले तो हर चीज क्या है प्रोसीडिंग्स मिलते हैं। 2017 में हम लोग हमारे मकबूल भगवान साहब भी क्या है एक लेटर रेडी करके केपीटीसीएल में क्या है जब बजट की क्या है प्रिपरेटरी मीटिंग चल रही थी, हम लोग लेके गए थे, सीएम साहब एंडोर्समेंट करके डाले, उसी लेटर उसी आधार पे क्या है 2018 में एक स्टडी टीम क्या है बीजापुर को आई थी, वो भी क्या है ऐसे ही रह गया। अब जो कुछ क्या है अब तक क्या है कोशिश होती आई है वो आगे नहीं बढ़ी, आगे इसलिए नहीं बढ़ी कि जो है उसे लोगों का क्या है आम सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन आज जिस तरह के हमारे अनिल वसमनी साहब, हमारे भगवान रेड्डी साहब, अकरम माशालकर साहब, सुरेश बिजापुर साहब, भोगेश शोलापुर साहब, पुजारी वकील साहब, भागेवाड़ी साहब अपना कोई मकसद ना रख के क्या है बीजापुर जिले के क्या है एक सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए क्या है एक होराट कर रहे हैं, एक धरनी सत्याग्रह कर रहे हैं। वो उनके बच्चों को क्या फायदा होने वाला नहीं, उनके रिश्तेदारों को फायदा होने वाला नहीं, आम कर्नाटक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के कर्नाटक स्टेट के क्या है आम गरीब जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको फायदा होता है। कई जगह क्या है 4-4 मेडिकल कॉलेज हैं, बीजापुर में भी क्या है कोई एक एडिशनल मेडिकल कॉलेज हुई तो क्या है ये गलत नहीं है, क्योंकि एक डिजर्विंग क्या है डिस्ट्रिक्ट है। वो लोग क्या है आज हमारे पास जमातों को क्या है एक दावत देने आए कि जो है 1 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पे क्या है एक प्रोटेस्ट रैली के तौर पर अपना एक डिमांड रखने के लिए जा रहे हैं। वो प्रोटेस्ट रैली शिवाजी सर्कल से लेके क्या है डीसी ऑफिस तक, अम्बेडकर सर्कल तक इंशाअल्लाह ताला होंगी। आप ये लोग क्या है दावत देने हैं, हम लोग मैं यहाँ पे क्या है कई हमारे आसपास के जमात के चेयरमैन सेक्रेटरी हैं, मैं आप तमाम लोगों की जानिब से और हमारी जमात के जानिब से आपको भरोसा दिला देता हूं कि जो है काफी ज्यादा तादाद में इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख को क्या है हम आपके साथ में आएंगे, आपके साथ में क्या है कंधे को कंधा लगा के क्या है साथ देंगे। और जब तक आप इस मुहिम में क्या है आपके साथ में क्या है वक्तन फक्तन जब भी क्या है हमें जरूरत पड़ती आप हमें बोलो कि जो है हमारे इसाक सेक्रेटरी हमारे इस्माइल उकली साहब या ऑर्गेनाइजेशन के संघ संस्था के लोग हैं, आपके साथ में टच में रहते हैं। हम लोग आप इंडिविजुअल हम ना दावत देने आए थे, हकीकत में परसों हम ना एक 4-5 जना को दावत देने आए थे। हमें खुद क्या है हमारे कारपोरेटर जमीर अहमद बांगी साहब का ये प्रपोजल क्या रहा है कि जो है इंडिविजुअल हम लोगों को दावत देने के बजाय हमारे पास 25 क्या है जमात है, आप एक वक्त दो, मैं खुद क्या है यहाँ अरेंज करके क्या है ये 25 जमातों ये फेडरेशन का क्या है मीटिंग बुला के एक ये करता हूँ प्रोग्राम करता हूँ। आप भी क्या है उनको क्या है दावत दे जैसा होता है, उनको भी तसल्ली होती बोल के क्या है आज ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया। और उन्होंने खुद क्या है ठहर के ये जो भी अरेंजमेंट चेयर्स है पानी है वो खुद क्या है अपने से हाथों से क्या है ये अरेंजमेंट किया। मैं जमात के जानिब से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ क्या है हमारे आसिफुल्लाह कादरी साहब जो गवर्नमेंट के डीजीपी हैं और गच्चीमल जमात के सेक्रेटरी हैं, वो भी हमारे साथ में क्या है आपकी दावत पे क्या है यहाँ तशरीफ फरमाए। तमाम क्या है जमात के क्या है मोतबर लोग यहाँ पे क्या है जिम्मेदार लोग यहाँ पे तशरीफ फरमाए। मैं और एक बार ये होराट समिति की जानिब से आपको यहाँ पे क्या है दावत देता हूँ कि जो है आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में 1 तारीख को शिवाजी सर्कल से लेके क्या है अम्बेडकर सर्कल तक जो ये मेडिकल कॉलेज की डिमांड की क्या है प्रोटेस्ट रैली है उसमें हिस्सा लेंगे।
और इससे ज्यादा क्या है, मैं हमारे कारपोरेटर जमीर अहमद बांगी साहब होंगे, हमारे एक्स मेयर इदरुस पाशा बख्शी साहब होंगे, और तमाम क्या है जमात के जिम्मेदार क्या है, घर घर फिर के भी क्या है, गली गली फिर के भी क्या है, दावत दे के क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है जमाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इतनी बात करते हुए क्या है मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज की खूबसूरत शाम के मौके पर मौजूद हमारे सदर रहे डॉक्टर जिलानी सर और आए हुए सभी हमारे मेहमान भगवान रेड्डी साहब, बाकी मेरे भाइयों को मैं नाम नहीं जानता, और सिद्धलिंग भागीवाड़ी साहब, सिरनाथ पुजारी साहब, सुरेश बीजापुर साहब, माशालकर साहब, हमारे जमात के चेयरमैन आफ्ताब कादरी साहब, आसिफुल्ला कादरी साहब। रही बात ये सब जमातों को मीटिंग बुलाने का मकसद ये अभी भी हमारे आफ्ताब भाई और इदरुस बख्शी साहब बता चुके हैं, ये आने वाले दिनों में एक मेडिकल कॉलेज के बारे में होराटा होने जा रहा है। ये होराटा करने का मतलब उनका क्या जाती मामला, जाती कुछ फायदा उनके बच्चे पढ़ने वाले करने, ये सब जात के बच्चे पढ़ने वाले, सब गरीबों को असर करने वाले उन्हें निकले, उनका सपोर्ट देने वाला सर मैं तैयार हूँ। अभी भी हमारे भाई बताया सर का चेयरमैन साहब, उन्होंने परसों सहजी हमने दावत देने के लिए आए थे, हमें खुद ठहर को क्या है सब मिलाकर में हमारे पास क्यों एक फाउंडेशन जमात, एक पस्ती जमात का हमारे पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट को जमा लेकर हमें करेंगे बोल के उनको वादा किए थे। वो करने के बाद हम सब मिलकर जमाए, आप सब हमारी एक दावत को लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए। आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को तो एक फायदा मिलेगा, अगर कोई उम्मीद है आने वाला है। क्यों बोले तो हमारा एक गाँव बिछड़ा हुआ गाँव है, गरीबी है, गरीब बच्चे जाको पढ़ना। अभी हमारे डॉक्टर साहब बहुत बता रहे थे इसके बारे में, सांप लगा बोले हालत हमारे पास दिखाने की नहीं है, एक्सीडेंट दिखाने की नहीं है। दुनिया की हमारी जमीन 1.25 एकड़ हमारे पास जमीन है, सिविल अस्पताल के अंदर खाली पड़ी है, वो जगह पर बनाओ बोल के हमारा भी एक सपोर्ट है। अब सब वो होराटा समिति वाले आए हैं, उनको मैं एक जिम्मेदार होते हुए अब सभी हजरत से गुजारिश करता हूँ, आने वाली दिसंबर 1 तारीख को इस होराटा के अंदर शिवाजी सर्कल से लेकर डीसी ऑफिस तक हम साथ देंगे बोल के इतना कहते हुए मैं 2 बात को खत्म करता हूँ। ಸಲಾಮ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು। ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ। ಈ ಸದ್ದು ತುರ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೂತಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 71 ದಿನ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಬಿಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರು। ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಧರಣಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು। ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಂತಿತ್ತು। ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಇಲಾಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು 71ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು, ರಕ್ತ ಸಹಿ ಚಳವಳಿ ಆಯ್ತು। ರಕ್ತ ಸಹಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರಬಹುದು, ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಬಹುದು। ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿವಿ। ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸಿಎಂ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಆ ದಿನ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ತೀವ್ರತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಖಾಸಗಿಯವರ ಕೈಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ಉಳಿತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರಿದ್ದೀರಿ। ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಹೋರಾಟ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ। ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೋರಾಟವನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ 71 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗಿದಾರ ಆಗ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಜೈ ಭೀಮ್। आज के दिन जो पीपीपी मेडिकल कॉलेज के जो होराटा कर रहे हैं, हमारे होराटा समिति के सभी लोग जो यहाँ पर दावत देने के लिए आए। हम सभी जो जिम्मेदार यहाँ जामिया मस्जिद एरिया के जिम्मेदार जितने भी जमात के चेयरमैन और सोशल वर्कर जितने भी नौजवान हैं, हम लोग सब जने उनका साथ देंगे, क्योंकि ज़रूरी है मेडिकल कॉलेज होना। एक मेडिकल कॉलेज होने से
और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी होता है, सभी गरीब बच्चों को हेल्प होता है। 2-3 मेडिकल कॉलेज, 4-4 मेडिकल कॉलेज एक एक डिस्ट्रिक्ट में है। ये देखे तो बहुत पहले होना था, अभी तक भी नहीं हो रहा है। इसमें सियासतदान की चाल है, दूसरी कुछ की नहीं है। ऑफिसर लोग क्या जैसा सियासतदान बोलते हैं वैसा ऑफिसर लोग करते हैं। होना जरूरी है, हम लोग सब जने साथ देते हैं, इतना कहते हैं। मैं रहीम, आज के हमारे सदर डॉक्टर ओकी साहब और डॉक्टर रेड्डी साहब बड़े बेहतरीन अंदाज में ऐसे बातें बताए जो आपको मालूम नहीं थी, मुझे तक भी मालूम नहीं थी कुछ बातें, हालांकि मैं भी वहां जाता हूं। तो आज की हालत ऐसी है, जब तक हम खुद जाके लड़ के मांगते हैं जब तक मिलता नहीं। हालांकि हम कई बार बेंगलुरु गए, मैं भी दूसरे ओराट कमेटी में हूँ, दूसरे मसलों के लिए गए। कई दफा सिद्धरामैया साहब को, जमीर अहमद साहब को, नासिर साहब को 88% मुसलमानों ने वोट देकर तुम्हारी हुकूमत बनाई मेजोरिटी से, तो मुसलमानों के काम बहुत से पेंडिंग है, उसको करो करके कई बार गए तो भी खाली हाँ आशीर्वाद दिया, अभी तक नहीं हुआ। स्कूल का काम हमारे अभी इनामदार साहब भी बोले, हमारे वकील साहब बताए डिटेल में। 4 साल से, ये 2 साल पहले आप खुद गवर्नमेंट वाले पढ़ाई, म्यूनसिपालिटी वाले डेंजर है अगर बोल के तो मैंने 4 मिनट बना दिए थे इनकर को, एमबी पाटिल आपको यहाँ आको बोल गए सब पूरे जमात के सामने आपको, अब 2 साल अभी तक नहीं बनाए। तो ये वरायटी जो हमारी, ये जो समिति जो है हमारी जमात जो है, लड़कर आज भी उसके लिए सीएस के पास जाकर बहुत सारा काम कर लिए हैं। तो मतलब यह है कहने का कि जब तक हम मांग के लेते हैं, मांगने से नहीं मिलता, अब छीन के लेने की बारी आ गई है। तो इसलिए आपकी होराट समिति जो कर रही है, ये 72 डे एकदम कम नहीं है साहब, इतनी बड़ी स्ट्राइक बैठना है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। यानी वहाँ स्ट्राइक बैठना, वो बैठने वालों को मालूम होता है, देखने वालों को कुछ नहीं मालूम होता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ऐसे तो हमारी जमात के चेयरमैन और हमारे एडवोकेट साहब, हमारे इनामदार साहब, डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि पूरी तरह जो है हमेशा जब तक कॉलेज मिलती नहीं हम आपके साथ हैं। ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಾಬ್ तो पूरा जमात से उनके तरफ से जमी है। अब ಐಎಂಎ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಮೀನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಲಾನಿ ಔಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ 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 ಈ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ 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 ಜನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.